Hello students, in today's lecture we are going to learn about linear equation one variable. Linear equation in one variable is chapter number 2 of class 8 and we are going to study that today. Fine. Before starting with linear equation one variable, we have to understand what is an equation and we should also be very much clear with expression, right? Because equations are extension of expressions that we will see how they are related to each. Even you have studied about equation in your lower classes, studied in 6th, even in 7th you have studied, right? Uh, Chapter algebra in 6th class consists of equation and algebraic expression, right? Even 7th class, you have these two chapters, but they are separate, right? You have simple equations, 7th, and you have also algebraic expression, 7th. Fine. Now, so today, first of all, we will see how algebraic expression and equations are related. For that, I will put up two examples. If I write x squared plus 7, okay. If I write x plus 7 equals to 4. So out of the two, the first one is an algebraic. Second one is what? This is a linear equation. Okay. We'll understand the meaning of what is linear. Let us understand. Let us able to differentiate between expression and ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन हो गया. Okay, fine. So I hope it's clear till here. We'll go to the next part now. Let me just erase this. Okay. So basically from here you can see that the main difference between expression and equation is what? That algebraic expression never has an equal to sign, but an equation has. So if you find an equal to sign, that means it's an equation. Do not find an equal to sign, that means it is an expression. Okay. So just erase this. Yeah. So as I told you that we will be discussing, first of all we will understand the meaning of this chapter. When I say linear equation, I use the word linear. Linear means what? See, whenever an equation, degree of any equation 1, we say that it's a linear equation. For example, we will also learn to identify the degrees, because since the name is linear we will have to learn this thing, right? So if I give you 2x plus 7 equals to, okay, now there are basically three terms which you can see over here. Okay, so this is first term, second term, this is third term. Okay, I hope you all know that the term 7 and the term 4 are like terms. Okay, fine. So the power of the variable over here is 1, correct? There is no variable over here, that means the degree of this particular term, so even the degree of this particular term is, right, because whenever you do not have any variable, any term, that means the power of that term, or you can say the degree of that particular term is 0. Okay, the degree of this term is, so out of all the degrees, whichever is the highest, we say that that is the degree of that particular equation. So the degree of this equation is what? The degree of this equation. Okay, hence we say linear equation. Whenever you have the degree of equation 1, we say it's a linear equation. Let's take an example, x squared plus 2x plus 7 equals to 0. Now we say this as a quadratic equation. What do we say this as? We say this as a quadratic equation. And why so? Because if you check the degree of the terms, ये term की degree क्या है? 2 है. Because variable के ऊपर power क्या है? 2 है. That means degree क्या हुई? 2 हुई. Next, ये वाली term अगर आप देखो तो variable के ऊपर की power, when there is nothing, that means there is 1 over there. तो इसकी power क्या है? 1 है. Again if you see over here, there is 7. और जब भी एक constant term होता है तो उसकी का जो डिग्री होता है of that particular term is 0. अब सब में, इन सब में which is the highest degree? Highest degree is
2, दैट मीन्स ये पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है। और जब भी डिग्री 2 होती है वी से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज वाई इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, बिकॉज जो डिग्री है इक्वेशन की जो हम सॉल्व करेंगे कि डिग्री रहेगी 1, दैट इज वाई वी से दैट दे आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई थिंक इवन यू ऑल कैन मेक आउट वन वेरिएबल यानी क्या है, इसमें कोई भी एक वेरिएबल यूज हुआ होगा, या तो आप पूरे इक्वेशन में x यूज करो या तो आप y यूज करो, जो वेरिएबल आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो, बट फॉर वन पर्टिकुलर इक्वेशन एक ही वेरिएबल यूज हो। एक इक्वेशन के अंदर आपको 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल नहीं मिलेंगे। ओके फाइन, नाउ ठीक है, चलिए हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन तो ले लिया लीनियर इक्वेशन के बारे में, अब थोड़ा हम बेसिक्स पे जाते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लीनियर इक्वेशन है वो वर्क करता है वेट बैलेंस के प्रिंसिपल। वेट बैलेंस क्या होता है, आप कभी सब्जी खरीदने गए होंगे तो वो जो वेजिटेबल सेलर होता है उसके ही हैज़ अ वेट बैलेंस। ठीक है, आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो वो तोल के आपको दे देगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर आपको 5 kg पोटैटोस चाहिए समझिए, वेजिटेबल सेलर ने लेफ्ट पैन में 5 kg वेट रख दिया पहले तो, और उसका इक्वल अमाउंट का उसने क्या रख दिया, पोटैटोस रख दिया, तब जाके ये बैलेंस्ड होगा। राइट, अभी समझ लीजिए आपको 5 किलो नहीं चाहिए था, आपको खाली 3 किलो चाहिए था। ये जो लेफ्ट साइड का पैन है जहाँ पे आपने 5 kg वेट रखा है उसमें से वो 2 kg वो वेजिटेबल सेलर रिमूव कर देगा। राइट, तो 3 kg बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि लेफ्ट साइड वाला आपका पैन लाइट हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और पोटैटो वाला पैन नीचे आ जाएगा। राइट, बट बैलेंस रहेगा तभी वो आपको देगा। राइट, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ पोटैटो इज मोर जो कि नहीं डिजायरेबल है। राइट, तो हम क्या करेंगे इसमें से इक्विवेलेंट अमाउंट का पोटैटोज रिमूव कर देंगे, तो जाके क्या होगा, दोनों पैन बैलेंस्ड होगी। यानी जब आपने एक पैन से कुछ रिमूव किया तो दूसरे पैन से भी आपको कुछ रिमूव करना पड़ा। राइट, सेम वे अगर थिंक कि आपने आपका माइंड चेंज कर दिया और आपको 10 kg चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 3 kg है, तो वो वेजिटेबल सेलर क्या करेगा और वेट पुट करेगा और उसको 10 kg टोटल कर देगा। तो 10 kg कर देगा तो अगेन क्या होगा, राइट पैन ऊपर चला जाएगा और लेफ्ट पैन नीचे चला जाएगा। राइट, अब उसको सेम जितना उसने वेट लेफ्ट पैन में ऐड किया सेम अमाउंट का उसको पोटैटो ऐड करना पड़ेगा राइट साइड पे, तब जाके वापस दोनों बैलेंस होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट पैन में जो भी ऐड किया सेम चीज हमने राइट पैन में ऐड की। तो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन इज दिस कि कुछ भी अगर आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, इक्वेशन के एक साइड के ऊपर सेम चीज आपको दूसरे साइड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हो आप, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल को वहीं रखना पड़ेगा और बाकी सब जो अटैच्ड है वेरिएबल के साथ तो धीरे धीरे रिमूव करना पड़ेगा। अब कभी भी एक सिंपल इक्वेशन दिया होता है तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या रिमूव करते हैं, वॉट एवर इज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद द वेरिएबल हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है वेरिएबल के साथ उसको तो हम बाद में रिमूव करते हैं, बट पहले हम क्या रिमूव करते हैं, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है उस वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है दिस प्लस 3 इज इन एडिशन। राइट, जो 3 है वो एडिशन में है वेरिएबल के, तो हमें इसको रिमूव करना। ठीक है, तो अगेन वो पेन वाला प्रिंसिपल याद कीजिए। ठीक है, समझ लीजिए एक लेफ्ट पेन में आपको 2x प्लस 3 है और राइट वाले पेन में 7 है। अब आपको +3 नहीं चाहिए, +3 नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। करेक्ट, ये पेन में अगर 2x प्लस 3 है तो अगर आपको 3 नहीं चाहिए तो आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 2x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। और ये चीज याद रखिए कि जो चीज आप लेफ्ट साइड परफॉर्म करो वो सेम चीज आपको राइट साइड परफॉर्म करनी पड़ेगी। यानी लेफ्ट साइड से मैंने -3 रिमूव किया तो राइट साइड पे भी मुझे 3 रिमूव करना पड़ेगा। राइट, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम, देखो +3 -3 कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज दैट विल बी 0, तो बस बचेगा 2x 7 - 3 क्या होता है। ठीक है,
ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 4 आया है, यानी वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन। अगर कभी भी कोई वेरिएबल के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में तो आपको हटाना हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? बिकॉज अगर मैं 2x/2 करता हूँ तो 2 1 मुझे x मिलेगा खाली। दैट इज व्हाट आई नीड। मुझे खाली वेरिएबल चाहिए लेफ्ट साइड पे, तब जाके मुझे पता चलेगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी। तो मुझे इस 2 को बेसिकली हटाना है यहाँ से। व्हाट विल आई डू? आई विल डिवाइड दिस बाई, यहाँ पे भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 1 1 साइड 2 2 4, यानी क्या हो गया? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज द principle of this linear equation says that whatever operation you perform on one side, the same operation you have to perform on the other side. So this will become what? This will become x का मतलब क्या हुआ? ये जो x है यहाँ पे उसका वैल्यू है 2। ठीक है, अब आप ये चीज चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वेट बैलेंस है तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट? यानी दोनों साइड सेम क्वांटिटी मिलनी चाहिए। तो देखिए आरएचएस पे आपके पास है, और आरएचएस में आपके पास है 7। ठीक है, और एलएचएस में आपके पास क्या है? 2x+। ओके, तो x के जगह अभी आप क्या पुट करो? 2, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि वो x की वैल्यू 2 है। 2 x के जगह ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस 2 2 इज 4 प्लस 4 प्लस 3 क्या होता है? 7 होता है। ये आपका क्या है? इधर एलएचएस। हम क्या लिया था? एलएचएस लिया। एलएचएस हमारा क्या आया है? और एलएचएस इज 7, और हमारा आरएचएस क्या है? वो भी 7 है। इट मीन्स सीधी सी बात है, 7 इज इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स दिस इज बैलेंस्ड। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है दैट इज करेक्ट एंड द वैल्यू इज 7। ठीक है, ऐसे हम और एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सम ऐसा दे दिया हो कि 2x प्लस ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखें, जब भी आपको ब्रैकेट दिया हो, ब्रैकेट आपको दिख रहा हो, तो सबसे पहली चीज आप क्या करिए? ब्रैकेट को रिमूव करिए। और ब्रैकेट रिमूव कैसे होता है? देखिए बेसिकली जब आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा तब आपको टर्म्स अच्छे से पढ़ना चाहिए था। ओके, एंड आई गेस बहुत लोगों को ये क्लियर रहेगी कि टर्म्स क्या होता है, राइट? क्योंकि इक्वेशन के अंदर भी यही चीज इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए टर्म किस चीज को बोलते हैं हम, व्हाट इज अ टर्म। ठीक है, देखिए ब्रैकेट अगर रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आप आपके ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो। अब दिखाता हूं यहाँ पे मैं, ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है दैट इज +3। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर भी दो टर्म है, एक x है और एक समझ लीजिए 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस +3 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और समझ लीजिए +2 के साथ भी मल्टीप्लाई, तब जाके हमारा ब्रैकेट क्या होगा? रिमूव होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कोई भी एक सिंपल इक्वेशन दिया हो जिसमें डिनोमिनेटर किसी के भी नहीं हो, तो आप क्या करो? सबसे पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बिकम 2x, ये क्या होगा? प्लस 3x प्लस, देखिए प्लस इंटू प्लस क्या आया? प्लस आया। 3 इंटू एक्स क्या आया? 3x। अगेन प्लस इंटू प्लस क्या आया? प्लस आया, और 3 क्या आया? 6 आया, इक्वल्स टू 5। ठीक है, 2x प्लस 3x क्या होगा? 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 5। अब देखिए यहाँ पे वो प्रिंसिपल अब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको +6 नहीं चाहिए। अब क्या करोगे? 5x प्लस 6 माइनस 6, 5 माइनस, एंड दिस गेट कैंसल्ड आउट। आपके पास बचेगा 5x इज 5 माइनस 6 क्या होता है? -1। नाउ अभी आपको यहाँ से ये 5 को रिमूव करना है। अब क्या करोगे? डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ साइड। लेट मी, क्या होगा? ये होगा 1 डिवाइड बाई 5
यहाँ भी डिवाइड बाई 5 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा एंड x इज -/5। आपकी x की वैल्यू क्या आई? -1/5। ठीक है ना, ये एकदम ट्रेडिशनल या तो आप बोल सकते हो कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, इससे एडवांस वाला मेथड है दैट इज ट्रांसपोजिंग मेथड, और हम जनरली इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोजिंग देखेंगे और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सम्स भी सॉल्व करेंगे एंड ऐसे ऐसे वाले सम्स भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर में सब समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, कैन सब्सक्राइब टू इन्फिनिटी स्कॉलर्स हब एंड वी हैव अ सेंटर इन वडोदरा। आप वहाँ पे आके सेंटर भी विजिट कर सकते हो एंड यू कैन जॉइन अस। थैंक यू।